Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about the tenses. Today, we are going to discuss the kinds of tenses. Kinds of tenses. Dear students, I have told you earlier that tenses are there are three tenses. The first one is present tense. The second one is past tense, and the third one is future tense. There are three tenses in English: present tense, past tense, and future tense. Dear students, present tense shows action in the present time, past tense denotes an action in the past time, and the future tense expresses action in the future time. This one is for present time, past tense represent past time, and future tense represent the action, expresses the action in the future time. Dear students, to go to forward, one thing we have to understood well: time and tenses. Time and tenses. Time and tenses are not same. The relation between time and tenses is quite significant to understand. Sometimes a present tense may express future time and a past time may express present time. For example, they leave Goa. They leave Goa. They leave Goa. Yeah, they leave for Goa tomorrow. In this sentence, you know, the sentence is in present tense due to base form of the verb. Due to base form of the verb, क्योंकि यहाँ पर बेस फॉर्म वर्ब यूज हुई है लीव, इसीलिए ये प्रेजेंट है. लेकिन इसमें लगा है टुमारो. ड्यू टू टुमारो, दिस सेंटेंस हैज द सेंस ऑफ फ्यूचर टाइम. So this is the basic difference between time and tenses. One more example: I wish I had followed his advice. In this sentence, this is the base form of the verb. So this is the present time, but due to followed. Had and followed. Followed is the past participle form. So this belongs to the past tense. Clear, students? Now the use of be verb. Use of be form of the verb. As you have studied in earlier classes, be form और verb, और तो बी फॉर्म में कौन कौन सी वर्ब्स हमारी आती हैं ये आपको पता रहना चाहिए. इज, आर, एम, वाज, वर. इज, आर, एम, वाज, वर. विल बी, shall be. Is, are, am, was, were, will be, shall be, should be, would be, etc. They are the be form of the verb. For example, अगर हम की यूज़ की बात करें, यूज ऑफ बी फॉर्म एज द
मेन वर्ब। अगर हम बात करें यूज ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म का यूज हम कैसे करते हैं? तो बी फॉर्म का हम यूज करते हैं फर्स्टली मेन वर्ब। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल, शी इज माय सिस्टर, शी इज माय सिस्टर। हियर ए इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। They were in the class. They were in the class. यहाँ भी वर्ब का यूज हमने किया मेन वर्ब की तरह ही यहाँ यूज हुआ। दूसरा इसका यूज होता है कि हम इनका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं। इनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी मेन वर्ब का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, they were enjoying, क्या में एंजॉय कर रहे हैं? इन द पार्टी। they were enjoying the party। यहाँ आप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब है और वर्ब के साथ एक और वर्ब आई हमारी एंजॉय। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो एंजॉइंग है और वर्ब का जो यूज हुआ वो वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो वर्ब का जो यूज हुआ वो कैसी तरह हुआ? हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ। वन मोर एग्जांपल, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड। इस सेंटेंस में भी आप देखते हैं कि कुक मेन वर्ब है, तो एक सेंटेंस में दो व्यंजन हो नहीं सकती, ये इसकी हेल्प कर रही है इज। तो इज का यूज यहाँ पर क्या की तरह हुआ? हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ। इस सेंटेंस में आप देखते हैं इसका यूज मेन वर्ब की तरह, वर्ब का यूज मेन वर्ब की तरह, और इस सेंटेंस में जो वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह हम किस तरह करते हैं ये आपको याद रखना चाहिए। Our next topic, in the help of a table, I am going to tell you form of the verb हम इसका यूज कैसे करते हैं। आप समझिए, ये हम प्रोनाउन एक कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम बनाते हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, देन पास्ट में क्या यूज करते हैं और फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं, इसके साथ हम क्या चीज़ लगाते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। तो आई अगर है प्रोनाउन हमारा आई है, प्रेजेंट में हम इसके साथ यूज करेंगे एम का, और अगर ये पास्ट टेंस है तो इसके साथ यूज करेंगे वाज का, और अगर फ्यूचर की बात करें तो इसमें दोनों ही हम कर सकते हैं, विल बी का भी यूज़ कर सकते हैं और शैल बी का यूज भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा प्रोनाउन अगर बी है, यू है या थे, तो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे आर का, पास्ट में यूज़ करेंगे वर का WERE, और फ्यूचर में यूज़ करेंगे हम दोनों ही कर सकते हैं इसके साथ विल बी या शैल बी। बट ये स्टूडेंट्स एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि आई के साथ मोस्टली शैल बी का यूज़ करते हैं और इन प्रोनाउन के साथ मोस्टली जो है हम विल बी का यूज़ करते हैं। जब हम मॉडल वर्ब्स की स्टडी करेंगे तो इनको हम सेपरेटली आपको बताएंगे, ओके। और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी यही कंडीशन रहेगी, प्रेजेंट में आर का, पास्ट में वर का और फ्यूचर में विल बी का, मोस्टली विल बी का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा अगर बी है या सी है या इट है या हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, या हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारा, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में इसका, पास्ट में वाज का और फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल बी का। मोस्टली विल बी यूज़ करेंगे, बहुत कम कंडीशन होती हैं जिसमें हम शैल बी का यूज़ करेंगे, ओके। आई के साथ हमेशा शैल का यूज़ करना, बहुत कम कंडीशन है आपको विल का यूज़ करना हो, बाकी सबके साथ आपको यूज़ करना है विल बी का। नेक्स्ट टॉपिक वी विल एक्सप्लेन इन आवर नेक्स्ट lecture. Thank you. Have a nice day.